السلام علیکم. میں پہلے بھی آپ لوگوں کے بیچ میں آ چکی ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں میں پہلے جا چکی ہوں وہاں پر یہ قطعہ اکثر سنایا کرتی ہوں. یہ میری خوش قسمتی بھی کہ اکثر وہ قطعہ اس شہر کا نام اس میں فٹ بھی ہو جاتا ہے. بہت محبتوں سے آپ لوگ سن رہے ہیں. ایک بات کہنے کی کوشش کی, دیکھیے سنے گا. ابھی تک بھی مئو میں ہیں کئی اردو کے دیوانے, یہاں ایمان والوں میں حیا ہے اب تلک باقی. تباہی لاکھ ہو لیکن قیامت آ نہیں سکتی, تباہی لاکھ ہو لیکن قیامت آ نہیں سکتی. زمین پر ایک بھی مومن رہے گا جب تلک باقی. اور دیکھیے بہت آپ لوگ ڈر رہے ہیں, مینڈک کی بات بہت ہو رہی ہے, تو میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے. سنیے گا کہ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے, خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے. اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا, اگر وہ موت لکھ دے ہے تو مچھر جان لیتا ہے, اگر وہ موت لکھ دے ہے تو مچھر جان لیتا ہے, اگر وہ موت لکھ دے ہے تو مچھر جان لیتا ہے. اور دیکھیے میں بہت شکر گزار ہوں اردو زبان کی. میں کچھ بھی نہیں ہوں, اگر اردو نہیں ہوتی تو حیا بھی نہیں ہوتی. میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی کہ لتا کی زندگانی کو کسی نے تو حیا بخشی, لتا کی زندگانی کو کسی نے تو حیا بخشی. میں جس پر ناز کرتی ہوں میری پہچان ہے اردو, اسی کے دم سے وابستہ میری عزت میری شہرت, وہ زندہ ہے کہیں مجھ میں کہ میری جان ہے اردو, کہ میری جان ہے اردو. ایک قطعہ اپنے نام کے متعلق آپ تک پہنچا رہی ہوں. میری کوشش رہتی ہے کہ ہمیشہ تعارف کراؤں اور اردو کے متعلق کچھ کہوں. سنیے گا. میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے, اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے. میں ہندی کی وہ بیٹی ہوں جسے اردو نے پالا ہے, اگر ہندی کی روٹی ہے تو اردو کا نوالا ہے. مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے, مجھے ہے پیار دونوں سے مگر یہ بھی حقیقت ہے. لتا جب لڑکھڑاتی ہے حیا نے ہی سنبھالا ہے, لتا جب لڑکھڑاتی ہے حیا نے ہی سنبھالا ہے. اور دیکھیے اسٹیج سے کئی باتیں ہوئی, میں بھی نام لیے بغیر صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پکڑا جائے وہ مجرم ضروری تو نہیں ہے نا, جو پکڑا جائے ہو مجرم ضروری تو نہیں ہے نا, وہ دہشت گرد بس مسلم ضروری تو نہیں ہے نا, جو پکڑا جائے وہ مجرم ضروری تو نہیں ہے نا, جو دہشت گرد ہو مسلم ضروری تو نہیں ہے نا. اگر دل ہو بہت مضبوط طاقت آ ہی جاتی ہے, اگر دل ہو بہت مضبوط طاقت آ ہی جاتی ہے. کرو کسرت کے جاؤ جم ضروری تو نہیں ہے نا, کرو کسرت کے جاؤ جم ضروری تو نہیں ہے نا, کرو کسرت کے جاؤ جم ضروری تو نہیں ہے نا. اور ایک قطعہ آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ پکڑ کر پھر کسی معصوم کو تم جیل کر دینا, پکڑ کر پھر کسی معصوم کو تم جیل کر دینا. تمہارا کام ہے انصاف کو بھی کھیل کر دینا. بہت آسان ہے بم پھوڑ کر خود کو بچا لینا, بہت آسان ہے بم پھوڑ کر خود کو بچا لینا, کہ مسلم نام رکھ کر ایک فرضی میل کر دینا, کہ مسلم نام رکھ کر ایک فرضی میل کر دینا, کہ مسلم نام رکھ کر ایک فرضی میل کر دینا. دیکھیے ایک بات کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم لوگ جو مشاعرہ یہاں پہ 3-3 4-4 بجے تک یہاں پہ چل رہا, لیکن ہم ممبئی سے آئے, مہاراشٹر میں 11 بجے ختم ہو جاتی ہے اردو کی محفلیں. کرتا کوئی ہے, دہشت گردی کا الزام مسلم پہ آ جاتا ہے, اردو زبان پہ آ جاتا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی نظم کہنے کی کوشش کی. بہت وقت کے بعد 3-3 4-4 بجے کے ہم کو مشاعرے نصیب ہوتے ہیں. کل نہرو سینٹر میں تھا, 11 بجے ختم ہو گیا تھا مشاعرہ. تو دیکھیے ایک بات کہنے کی کوشش کی, سنیے گا. کیلنڈر ہی بدلتے ہو کبھی کردار بھی بدلو, کیلنڈر ہی بدلتے ہو کبھی کردار بھی بدلو, گزشتہ سال کے خواجہ سرا سالار بھی بدلو. کیلنڈر ہی بدلتے ہو کبھی کردار بھی بدلو, گزشتہ سال کے خواجہ سرا سالار
लचर सरकार को बदलो, किसी गलती भी हो ऐसी लचर सरकार को बदलो। और बदलने से भला तारीख क्या तकदीर बदली है, बदलने से भला तारीख क्या तकदीर बदली है। गुज़िश्ता वक्त ने बस उम्र की तनवीर बदली है। न जाने जश्न साले नौ का ये क्यों कर मनाते हैं, ये मगरिब के असर ने हिंद की तस्वीर बदली है, ये मगरिब के असर ने हिंद की तस्वीर बदली है। अब देखिए, अब मैं एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, उधर मुन्नी को सारी रात होटल में नचाते हैं। इधर उर्दू की महफिल पर तो ये बंदिश लगाते हैं, उधर मुन्नी को सारी रात होटल में नचाते हैं। अदब को भी मुसलमान जान महफिल में पुलिस आए, उधर खुद बेहयाई से वो सब पीते पिलाते हैं, उधर खुद बेहयाई से वो सब पीते पिलाते हैं। तो जब हर मोड़ पर हर जगह करप्शन ही करप्शन है, तो फिर बेकार है नारे, अजीब बेकार अनशन है। फकत बिल पास होने से बुराई रुक नहीं सकती, फकत बिल पास होने से बुराई रुक नहीं सकती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह या हया होना भी एक फन है। और अब देखिए, मैं इससे बढ़कर दावा नहीं कर सकती कि मेरी उर्दू जलेबी बाई तो हो ही नहीं सकती, मेरी उर्दू जलेबी बाई तो हो ही नहीं सकती, और शीला की जवानी में कभी खो ही नहीं सकती। चलो मैं शर्त रखती हूँ कि तुम भी लाख सर पटको, कयामत तक रहेगी ये फना हो ही नहीं सकती, कयामत तक। जट्टा जी आइए, बहुत मोहब्बत से सब लोग, पूरा शहर आपको आवाज दे रहा है, याद कर जी आ रही है, पानी पीने के लिए। आइए, जट्टा साहिबा तशरीफ ला रही है। देखिए, आप लोग सुनते रहते हो, मेरी कोशिश है कि मैं नया सुनाऊं, और मुझ पर ये भी इल्जाम आता है कि मैं अक्सर आप लोगों की बात करती हूँ, मुसलमानों की बात करती हूँ। मैंने आप लोगों को नजदीक से देखा है, समझा है, तो मैंने कहने की कोशिश की। अभी ताज़ा हालात ये भी है कि मक्का मदीना पे बम गिराने की वो आई, और दूसरा फिर कुरान को टैरी ने फाड़ा। तो मैंने एक बात कहने की कोशिश की, बहुत पहले मैंने कहा था, फिर से आप तक पहुँचा रही हूँ, सुनेगा। जलाने से जलेगी और न फाड़ो तो फना होगी, कयामत तक न होगा काम ये तकमील शैतान का। ये कुरान है कलामे पाक है, तू क्या मिटाएगा, ये कुरान है कलामे पाक है, तू क्या मिटाएगा, कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का, कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का। और देखिए, मुंबई से आई हूँ, एक गजल आप तक पहुंचा रही हूँ। मुंबई में जहाँ भाषा के बहुत झगड़े होते हैं, वहां मैंने मुंबई भाषा को कि एक बात कहने की कोशिश की, उर्दू के ग्रामर का रदीफ काफिया का इस्तेमाल करके कहने की कोशिश की कि क्यों सच बात में कहती हूँ कि सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। जब न जीना तेरे बस में है न मरना बस में, जब न जीना तेरे बस में है न मरना बस में, हक बयानी से भला काय को घबराने का, हक बयानी से भला काय को घबराने का। और तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। और कब तलक हाथ में पत्थर को लिए घूमोगे, कब तलक हाथ में पत्थर को लिए घूमोगे, पास दुश्मन के कभी फूल भी भिजवाने का, पास दुश्मन के जरा फूल भी भिजवाने का। और खूब पर मार के पहुंचे हो फलक पर फिर भी, खूब पर मार के पहुंचे हो फलक पर फिर भी, अपनी परवास पे हरगिज नहीं इतराने का, अपनी परवास पे हरगिज नहीं इतराने का। देखिए, अपनी फितरत बता रही हूँ कि ना बुलाती हूँ किसी को, ना मैं जाती हूँ कहीं, ना बुलाती हूँ
किसी को, ना मैं जाती हूँ कहीं, काम के बाद हया घर में सिमट जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। देखिए अभी बहुत खूबसूरत एक नज्म वहाँ पे आपने सुनी जी। आप उर्दू का गीत सुन चुके, लेकिन क्योंकि बहुत सारे नौजवान या बच्चे मौजूद हैं, और मैं आपको बताऊं कि शायरी के अलावा मैं एक ट्रस्ट भी चलाती हूँ। मैं बुजुर्ग लोगों का वृद्धाश्रमों में जाके मैंने उनका एक दर्द देखा है, और हम लोग सिर्फ यही नहीं कि यहाँ आए और अपना पेमेंट लेके चले जाएं, हमें एक पैगाम देना भी एक हमारा फर्ज बनता है, अगर ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है। मेरे बहुत सारे यहाँ पे नौजवान, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, और मैंने एक नज्म कहने की कोशिश की। देखिए इसे एक हिंदुस्तान की बेटी की तरफ से हिंदुस्तान के बेटों के नाम एक पैगाम मानिए। अभी एक खोपोली में बालाजी का आश्रम है, जहाँ पे 64 अभी बूढ़े बूढ़ी हैं, और वहाँ पे उनके बच्चों ने 3000 रुपए महीना देने से उन लोगों ने मना कर दिया। अब देखिए मैं एक नज्म मैंने कहने की कोशिश की। कलीम साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही, आप उर्दू का गीत, बुलबुल का गीत सब सुनते रहते हैं, लेकिन क्योंकि नौजवान पीढ़ी है, एक नज्म सुनाने की कोशिश करिए, सुनिएगा। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। बेटियों को मरवा दिया जाता है जन्म से पहले, जबकि आज के दौर में बेटियां माँ बाप की जिम्मेदारी ढंग से निभाती हैं। और ये भी कहना चाहूंगी मैं नौजवान पीढ़ी से कि शादी के बाद अपनी बीवी को सब कुछ समझते हैं, माँ बाप की तौहीन करते हैं। ये जहन में रखें कि हमारे माँ बाप की वजह से आज हम हैं। सुनिएगा कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब। उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। और बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। देखिए इस बंद के लिए मैं नज्म सुना रही हूँ, और ये लानत के तौर पर सुना रही हूँ। आपने देखा भी होगा, अपने आसपास का माहौल भी देखा होगा। सुनिएगा कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है। बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा, क्यों भूला ये सच्चाई। और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई। जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछे कि तुझसे तेरी माँ जाई। बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत। मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा, एक दिन तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। आखिरी बंद देखिएगा कि खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा, एक दिन तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को। बहुत अच्छे बताया क्या करने हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों एक दौर खत्म हो जाने दीजिए, आप लता साहिबा से भी सुनिएगा। देखिए इस मुशायरे में एक बड़ी खास बात मुझे ये देखने में आई कि जितनी देर जो शायर पढ़ रहा है आप भरपूर उसे दाद और तहसीन से नवाज रहे हैं। दरमियान में कुछ लोग उठे थे, जाहिर है मेरा ख्याल है कम से कम 1 लाख का मजमा है। इस मजमे में अगर दरमियान से 100-200 आदमी उठ जाते हैं तो यकीनन उनकी कोई मजबूरियां ऐसी होंगी कि वो बर्दाश्त से बाहर होंगी, जिसकी वजह से वो उठने को मजबूर हुए। लेकिन इतना बड़ा मजमा इस तहजीब के साथ अगर बैठा है तो मुबारकबाद का मुस्तहिक